So this is our third class for the machine design lab, MD lab. So in the last class we have done plotting of the circle. Quick. For the plotting of the circle, we used x equal to r cos theta, where r is the radius of the circle, y equal to r sin theta, where x, y are the Cartesian coordinates, r is the radius and theta is the angle. So theta is varying from 0 to 360 degree. Theta is varying from 0 to 360 degree. Or we can say 0 to 2 pi in radian form. So for this generation, we have used theta equal to 0 with the increment of something. It may be 5, 10, 1, whatever you want. Let there is increment of 10 degree and it is going up to 360 degree. So that we have used for theta. Okay. So this command is doing what this is doing. You are having 360 degree angle from 0 to 360, and it is dividing this into with increment of 10. It is getting 37 points over here. So this we have done in the last class. In the today's class, we will extend this logic for drawing of the ellipse. For the drawing of ellipse. So for ellipse, you already know the equation is x square divided by a square plus y square divided by b square equal to 1. So in the case of ellipse, there are two axes. One is pen is not working correctly today. So this is ellipse. In this ellipse, there is a minor axis and major axis. So major axis we consider 2a, minor axis we consider 2b. So a and b are the half of the major axis and minor axis. हाँ, मेरी आवाज आ पा रही है आपको ठीक से या कम आ रही है? सही आ रही है सर, आ रही है. So a is the half of the major axis and b is the half of the minor axis. So this is the equation for ellipse. So in case of circle, what is the difference? 2a equal to 2b equal to 2r. Circle के केस में क्या था? This 2a is 2r, 2b is 2r. No, they both are equal, but in case of ellipse they are different. So the polar, in the form of polar coordinates, the equation of the ellipse changes somewhat. X equal to, I can say, a cos theta and y equal to b sin theta. So this is the general equation for the ellipse that we can use in our MATLAB window for drawing the ellipse, है ना? तो भी इसको हम लोग कर लेंगे. इसके बाद एक चीज आती है, एक और चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं बात करूं हाइपरबोला की. Hyperbola. So for the hyperbola,
What is the equation? X square by a square minus y square by b square equal to 1. है ना? Only in case of plus here there is minus. Then what is the equation for the hyperbola? Anybody can tell the equation of hyperbola in polar coordinates? हाँ जी बताइए. 53 participants are now with me. Can anybody tell the equation of the hyperbola in the form of polar coordinates? Just like that we have ellipse x equal to a cos theta, y equal to b sin theta. तो किसी को पता है what is the equation of hyperbola? No idea. चलिए कोई बात नहीं. So x के ये आपको बुक्स में मिल जाएगा, थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा. तो x equal to a sec theta and y equal to b sin b tan theta. So x equal to a sec theta. So it is a square sec square theta. A square cancel out. And when you put these two values in the equation on the left hand side, you can verify this equation in this way. So a square sec square theta divided by a square minus b square tan square theta divided by b square. So this is your left hand side. So a square cancel out. This remains only sec square theta. This remains only sec square theta. B square cancel out. This remains only tan square theta. And we know on trigonometry sec square theta minus tan square theta is Equal to 1. So we are getting the right hand side. So this is the we can say this is the right values for the x and y for the hyperbola. And similarly, you can verify ellipse also. So this is general. Now I am stopping this whiteboard and I am sharing you with the MATLAB window. So on the MATLAB window, yeah. So you are seeing the MATLAB window now? Yes, sir. Yes. So in the command window, I am giving you some commands. First, some new commands. Please note करते जाइएगा. Let I am making a matrix, or let I am closing this editor window. Circle 1. This is the last program that we have made for the circle. So this is the program for the circle. Let's have a look on this. CLC clear. R equal to 1, that is radius. Theta is 0, tan 360. X is r cos theta, y is r sin theta, plot xy. So this program is giving us the plotting of the circle. So before making the program for the ellipse and hyperbola, I want to discuss some basic commands again. So first command is let I am telling, is there any variable in the workspace? Workspace is vacant, no variable in the workspace. So when this program will be executed, circle program, CLC, it will clear the window. Clear means it will clear the workspace, it is already clear. R is 1, radius is 1, theta is 0 to 360, it will have 37 terms. X equal to r cos theta, it is again 37 terms. Y equal to r sin theta, again 37 terms. And plot xy. So let I am taking a new script now. I am taking a new script now. Okay, so this is untitled. This is a new file. I can make the program of ellipse in the first file also. I can make the program for ellipse in this file also. But presently I am taking the new file. You can combine them, both the codings in one. So in this file, first I will use CLC, then I will use clear, or I can say clear all. Clear and clear all are same thing. No problem. Clear and clear all means clearing all the variables, and only clear means clear all the variables. They both are same. So you write either clear or clear all. Then after, I have to decide the major axis and the minor axis. In case of circle, I have decided the radius. Let r equal to 1. So here I am deciding let a equal to 2 and b equal to 1. And this is the half of the major axis and half of the minor axis I have divided. Then I have
x equal to a cos theta. So a multiplied cos of theta. So I will use cos d. But theta is undefined till now. So I have to define theta first. So I am using theta equal to, now I am working in radians. In the previous program, I have worked in the form of degrees. So here I want to work in form of radian. So I am avoiding this d. I am not using this d, cos on plain cos only. So theta is varying from 0 to 2 pi. So first value is 0. Let I am taking an increment of 0.1 radian, and the last value is 2 pi. So 2 multiplied by pi. So in the MATLAB window, pi is a constant. If you write pi, then press enter. What are you getting? 3.1416. So for pi, you can generally use pi. It is a constant or it is a keyword in MATLAB. So do not provide 3.14. It is already having the value pi constant, pi. So it is 0. First value is 0. Last value is 2 pi. And the increment of 0.1. And x equal to a cos theta. Now there is no need to write d here because the angle are in radians. And the next coordinate is y equal to b sine theta. So I am writing sine of theta, and plot xy. So when I will run the window, I will run this program. So first it will ask me to save the file, save this program. So I am running this program. So it is asking to save the file. So I want to save this file. Let the file name is, I am writing ellipse1. This is my ellipse1 program. And it is saving in the which window? MATLAB window. Initially I am working in which file? I am working in MATLAB file again. Working in MATLAB file. So there is a circle program is also there. There is a ellipse program is also there. So I am saving it. As I have saved, it will run. So जैसे ही ये run हुआ, तो run होने के बाद आपके सामने ellipse available है. You are getting the ellipse. So you can see that the major axis is from 0 to 2. It is and the minor axis is 0 to 1. So it is -1 to. सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए. अच्छा आपको ये ब्लैक नजर आ रही होगी अभी, है ना? Yes, sir. Okay, so I am sharing this window so that you can see this file. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो आप देखिए माइनर एक्सिस को यदि आप नजर करें तो ये 0 से +1 यानी कि 1 यूनिट है. So I have defined b equal to 1 and I have defined a equal to 2. So ये देखिए 0 to 2. So semi major axis is 2 unit and semi minor axis is 1 unit. Semi major axis is 2 unit and semi minor axis is 1 unit. So this is the program for the ellipse. Okay, so I am just closing this window now. And now you are able to see the MATLAB window or not? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. It is visible to you. This file is visible. A equal to 2, b equal to 1. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's fine. So that I have made the program for ellipse. So we have made the program for circle. We have made the program for ellipse. Now I am giving you an assignment that you self try the program for the hyperbola. है ना? तो उसमें कुछ नहीं करना है आपको. X equal to a sec theta, y equal to b tan theta, and other things will remain same. तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा. तो अभी फिलहाल इसके बाद में अब आपका वापस आ रहा हूँ स्क्रीन पर. अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, सर्किल के प्रोग्राम में या इलिप्स के प्रोग्राम में. बहुत सिंपल सी कोडिंग की है मैंने.
थीटा को डिवाइड कर, थीटा की वैल्यू जरा देखिए कमांड विंडो में, जरा चेक कर लेते हैं थीटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो ये देखिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस। इसके बाद थीटा देखिए कॉलम 1 थ्रू 11 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है थीटा। Theta has been divided into 11 parts. So first value is 0 and last value is 2 pi. 2 pi means how much? 2 pi means 2 pi की वैल्यू कितनी होती है? 6.2. ना, it is coming 6.2. कितनी वैल्यूज में डिवाइड हुआ है? 63 वैल्यूज में डिवाइड हुआ है, not 11. It is divided into 63. यहाँ पर तो कॉलम 1 to 11, then column 12 to 22. So this matrix is again increasing and it is up to 63. So theta has been divided into 63 values by this line. And if theta is having 63 values, then x coordinate will have 63 values and y coordinate will also have 63 values. So we are plotting those 63 points and we are getting a ellipse over here. So you are getting two type of outputs. One is the output which is available in the command window. It is a mathematical output, and one output which is available in the form of figure window. Okay, so command window and figure window both are giving output. Command window is giving calculations, and figure window is giving the graphical form. Okay, so this is clear. Now I am clearing this window, and I am closing the editor window. This window also, this window also. Nice. It is asking me save changes to circle. मैं yes कर देता हूँ. आप देखिए यहाँ पर ये y coordinate भी 63 है, x coordinate भी 63 है. Lot of output I am having on the screen. So I want to clear the screen. How many variables in the workspace? A is the semi-major axis, B is the semi-minor axis, theta is the angles, x coordinate, y coordinate. So all the variables are controlled here. So this is the area in workspace. So if I want to clear CLC, so screen is cleared, workspace is again available. If I will use clear, then workspace variable will again clear. है ना? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मत समझिए कि यहाँ से वर्कस्पेस क्लियर हो गया तो अब ये इलिप्स का प्रोग्राम काम नहीं करेगा. इलिप्स का प्रोग्राम अभी भी काम करेगा. जस्ट यू हैव टू राइट इलिप्स 1. आपको फाइल खोलने की भी जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट इलिप्स 1 एंड प्रेस एंटर. क्या कह रहा है? अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल. हमने इलिप्स का नाम क्या दिया है? ELLIPSE1 और हमने यहाँ पे क्या लिखा है? ELLI. तो हमने स्पेलिंग गलत दी हुई है और वो हमें सजेस्ट भी कर रहा है ELLIPSE1. नाउ प्रेस एंटर. तो देखिए वही प्रोग्राम दोबारा से रन हो गया. आपका फिगर आ गया मेरे पास और ये देखिए कमांड विंडो की सारी कैलकुलेशंस आपके पास आ गई और आपके सारे वेरिएबल्स जनरेट हो गए तुम्हारे से. तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? इफ यू आर क्लियरिंग द वर्क स्पेस, नो प्रॉब्लम. When you will run your file, all the variables will again generated in the workspace at the time of running of the program. Okay, so this is clear. So I am again using CLC over here, again using clear over here to clear the variables. ठीक है. अब थोड़ा सा कुछ दो चार बातें वैसी सीखते हैं नॉर्मल टाइप की. Suppose I am writing a command over here, let date. So what is the today's date? 16th of July. If I press enter, it is giving me the date of today in the by default variable answer. Answer is the by default variable in the MATLAB window. So it is giving me 16 July 2020. Okay, now I am making a variable let a equal to, I am writing let 1:8. What will be the output? I will get an array of 1 to 8 with a default 1 to 8. default increment of 1. 1. So I am getting this. Okay. If I write a into 8, what is the answer?
What is the answer? Sir, A will be multiplied by A. A will be multiplied by A, Yes. है ना? But it will not multiply A into A. आप देखिए आंसर में क्या दे रहा है ये. It is giving some error, है ना? Error using inner matrix dimensions. तो इसको समझाने के लिए जरा सा देखिए, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसे मल्टीप्लिकेशन में एरर क्यों आ रही है. नाउ व्हाइट बोर्ड इज विजिबल टू यू? Yes, sir. ओके. तो देखिए जब मैंने कहा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए और इसका साइज मान लो मैंने दे दिया, लेट इट इज हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4, और मैंने कमांड दिया ए इनटू ए. तो इसका मतलब है दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 3 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 3 2 4. इसका साइज है 2 by 2, इसका साइज भी 2 by 2 है. तो फाइनल साइज मुझको क्या मिलने वाला है? 2 by 2 ही मिलने वाला है. तो इस तरह के मैट्रिक्स में यदि मेरा मैट्रिक्स इस प्रकार का है तो मुझे उसमें कोई एरर नहीं आने वाली है. लेकिन अभी मैंने क्या किया, मेरा मैट्रिक्स 1 to 8 था, तो मेरा जब मैंने a into a किया, a मल्टीप्लाइड बाई a, तो मैंने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 मल्टीप्लाइड बाई अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8. तो क्या हुआ, इसका साइज क्या था? 1 by 8. इसका साइज क्या था? 1 by 8. तो 1 by 8 when multiplied by 1 by 8, so this does not obey. It does not obey. It is not obeying. It is not obeying the matrix multiplication rule. Yes, sir. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है. Yes, sir. कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं यदि पहले मान लीजिए हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं a into b, और पहले मैट्रिक्स का साइज यदि m by n है और दूसरे मैट्रिक्स का यदि n by p है, तो फाइनल साइज m into p होगा. मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको क्या मिलेगा? m by p मिलेगा. तो इन दोनों में n इज कॉमन. आप ध्यान से देखिए, n कॉमन है, n is common. So this n and this n are common. These both n are common. तो ये जरूरी है कॉमन होना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए. अब आपके केस में देखिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है. नथिंग इज कॉमन. नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल है. ध्यान रखिएगा इस चीज को. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? पहले मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल टू दूसरे मैट्रिक्स के रो. ये ध्यान रखने की बात है. तो अब मैं वापस मैटलैब विंडो पे आ रहा हूं, है ना. आई एम अगेन कमिंग बैक टू मैटलैब विंडो. तो अभी इसने क्या किया, मुझे एरर दे दिया, क्योंकि मेरे दोनों मैट्रिक्स क्या थे, दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था ये, है ना. इज नॉट सेटिस्फाइंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. यदि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करेगा तो उसमें आ जाएगा. सपोज अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर 8 वैल्यूज हैं और हर वैल्यू का इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाए, हर वैल्यू का इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाए. तो मैं क्या लिखने वाला हूं, a, मान लीजिए मैं लिखता हूं a पावर 2. a पावर के लिए ये वाला निशान होता है मैटलैब में, a पावर 2. तो इसका क्या मतलब है? a पावर 2 का मतलब भी यही है, a into a. तो मैंने पहले जो कमांड दी है a into a, और अब जो कमांड दे रहा हूं a पावर 2, they both are having same meaning. तो अभी भी मुझे वही एरर मिलने वाली है. I will get the same error now, है ना, सेम एरर. अब मान लीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है कि हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाए. तो देखिए इस कमांड में मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं. आई एम पुटिंग ए डॉट ओवर हियर. मैंने यहाँ पर केवल एक डॉट लगाया है, a डॉट पावर 2. तो अब इस a डॉट पावर 2 से देखिएगा आउटपुट में क्या चेंज आता है. क्या हुआ? 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 8 स्क्वायर इज 64.
ठीक है, तो देखिए डॉट लगाने से अब कोई एरर नहीं आ रही है और इंडिविजुअल एलिमेंट्स का स्क्वायर हो रहा है। जितने भी एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में होंगे उनका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना। तो इस ऑपरेटर को हम कहते हैं डॉट ऑपरेटर। नोट कर लीजिए, डॉट ऑपरेटर का मतलब होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं इसी कमांड को ऐसे लिखता, a डॉट पावर 3, a डॉट पावर 3, तो जब पावर 2 है तो स्क्वायर हो गया, पावर 3 है इट विल बी ए क्यूब, सो यू विल गेट द आंसर इन दिस वे। सो देखिए 1 क्यूब इज 1, व्हाट इज 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 and 7 cube is 343, 8 cube is 500. So are you getting this? हाँ जी, a dot power 2 Yes sir, yes sir. it will square all the values, a dot power 3 means it will cube all the values. Yes sir. Okay, अब मान लीजिए मैं लिखता हूं a dot power 0.5, a dot power 0.5, what does it mean? ये हर वैल्यू का क्या कर देगा, ए के हर एलिमेंट की पॉइंट स्क्वायर रूट पावर देगा। कर, यस सर, स्क्वायर रूट, यस सर। लेट प्रेस एंटर। तो देखिए 1 का रूट 1 होता है ना, 2 का रूट कितना होता है 1.414, बिल्कुल सही आ रहा है। रूट 3 कितना होता है 1.73, है ना, सो वी आर गेटिंग द राइट वैल्यू। 4 का रूट कितना होता है 2, करेक्ट। तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन है। अब ये हर एक पे वर्क करेंगी, चाहे पावर 3 हो, पावर 4 हो, पावर 10 हो, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, ठीक है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ऑपरेशन, करेक्ट। तो हमने एक ये चीज सीख ली। चलिए मैं इसको दोबारा से सीएलसी कर देता हूँ, है ना। मैं समझता हूँ कि आपको डॉट ऑपरेशन समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ और चीजें बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए रोज, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा जीरोज ब्रैकेट में 5, जीरोज ब्रैकेट में 5, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, zeros 5, it is giving you a matrix, 5 है ना, having 5 rows, 5 by 5 की मैट्रिक्स, 5 columns with each and every element equal to 0। तो ये इस तरह की कमांड जो होती हैं, ये कभी कभी जब हम हैवी कंप्यूटेशन करेंगे आगे और हमें मान लीजिए वेरिएबल असाइन करने हो, तो कभी कभी इनिशियल वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम उनको 0 असाइन कर देते हैं उन वैल्यूज कैलकुलेशन। So this command can be used for the initialization of the values. So it is 25 variables in the form of 5 rows and 5 columns, है ना। इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, zeros, suppose you write 5, 5, है ना, सेम आंसर आ जाएगा, 5 rows 5 columns, you are getting same। जब आप एक वैल्यू देते हैं 5, मैटलैब ये समझता है कि आपकी रो भी 5 है और आपके कॉलम भी 5 है। जब आप 2 वैल्यूज देते हैं, मैटलैब कहता है आपके रो भी 5 है, मैटलैब आपके कॉलम भी 5 है। और इसी कमांड को यदि आप इस तरह से एग्जीक्यूट करें 5,9, तो देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, मैटलैब ये समझेगा अपने आप 5 रो हैं 9 कॉलम, 5 रो 9 कॉलम, यस। यदि आप सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो आपके रो और कॉलम इक्वल माने जाएंगे, और यदि आप 2 वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो जो आप देंगे वही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमने नई कमांड सीखी आज, जीरोज, नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से इसे सीएलसी कर रहा हूं, एक और कमांड चलाते हैं, वंस, है ना, इसका नाम है वंस। मान लीजिए मैंने ब्रैकेट में लिखा 1 6, है ना, देखिएगा इसका आउटपुट क्या है, यू आर गेटिंग 6 by 6 मैट्रिक्स विथ ईच एलिमेंट इक्वल टू 1 आपका ईच एलिमेंट कितना है 1 है। अब मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि हर एलिमेंट 2 हो, हर एलिमेंट 5 हो, हर एलिमेंट 9 हो, तो आप सिंपली क्या करिए, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 multiplied by 1 6, so this will give you a matrix, it will give you a 6 by 6 matrix with each element equal to 9। तो आप मतलब मैटलैब के अंदर इसका नाम ही मैट्रिक्स लेबोरेटरी है, तो इसके अंदर मैटलैब के मतलब बहुत सारे ऐसे रिच फंक्शन हैं कि जिनको यदि जान लेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से
कैलकुलेशन एबिलिटी जो है वो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो जीरोज हमने पढ़ लिया, वंस हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम एक दो कमांड और पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, इसको मैं पहले CLC कर देता हूँ, नोट करते जाइएगा प्लीज, है ना, और सारी कमांड्स को आप समअप करिएगा, और आपकी फाइल को भी मैं बताऊंगा कि आपको स्कैन करके मुझे कैसे भेजना होगा सबमिशन में, देन आई विल चेक योर फाइल आल्सो। तो एक आप ना सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लिख लीजिए, प्लीज नोट डाउन, या मैं ऐसा करूंगा, मैं आपका एक्सपेरिमेंट आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा, है ना, पोर्टल पे अपलोड करूंगा, फिर उसका आप जो है वहां सबमिशन कर देना। Okay, sir. Okay, sir. हाँ sir, that will be better. ओके सर। Okay, sir. सॉफ्टवेयर शेयर कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। सो अभी मैं इसको CLC कर रहा हूँ, तो हमने जीरोज कर लिया, वंस कर लिया। अब मान लीजिए मैं एक कमांड देता हूँ DIAG, है ना, और मान लीजिए मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ 1 2 3 4, ब्रैकेट बंद कर दिया, प्रेस एंटर, इट इज गिविंग मी सम एरर। ठीक है, तो अब मैं आपको इस डायलॉग को तो बाद में बताऊंगा, मैं एक मैट्रिक्स बना ले रहा हूँ, x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट से मैट्रिक्स बनता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैट्रिक्स मेरा है, सपोज मेरा एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, है ना। मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं सिंपल वे में, जब लाइन से ही है तो मैं लिख सकता था 1:4, आई कैन राइट इन दिस वे। दिस इज माय फर्स्ट रो। सेकंड रो के लिए मैं लिख सकता हूं 2:5, दिस इज द सेकंड रो, सेमीकोलन मींस स्टार्ट ऑफ न्यू रो। देन आई एम राइटिंग 3:6, and the last row as I am writing 4:8। तो ये कितने बाई कितने का मैट्रिक्स बनने वाला है? 4x4 का मैट्रिक्स बनना चाहिए। तो इसमें कुछ एरर आ रही है, तो क्या एरर आ रही है? देखिए x एक मैट्रिक्स है 1 2 4, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गए, 2 2 5 में 2 3 4 5 हो गए, 3 4 5 6 हो गए, और ये 5 4 से 8 में 5 एलिमेंट हो गए। कितने एलिमेंट हो गए? 5 एलिमेंट हो गए। तो ज्यादा एलिमेंट होने की वजह से इसका साइज डिस्टर्ब हो गया, इसलिए एरर दे रहा है। तो ये 8 की जगह पर यदि मैं 7 कर दूंगा, 4 5 6 7, तभी तो 4 एलिमेंट होंगे, अन्यथा क्या हो रहा था? 4 5 6 7 8, 5 एलिमेंट हो रहे थे। इसे 4 to 7 किया, प्रेस एंटर, तो आपका मैट्रिक्स बन गया 4x4 का। देखो मैटलैब बहुत सेंसिटिव है, यदि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे भी ध्यान नहीं रखेंगे तो भी आपके केस में एरर आ जाएगी, क्योंकि आपने पहली रो में 4 एलिमेंट दिए, दूसरी रो में भी 4 दिए, तीसरी में भी 4 दिए, चौथी रो में आपने 5 एलिमेंट दे दिए, इसलिए ये एरर दे रहा है। एरर यूजिंग वर्टिकल कैटकेनेशन, मैट्रिक्स का कैटकेनेशन नहीं हो पा रहा है। तो नाउ x इक्वल टू 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स का साइज क्या है? 4x4। अब इस मैट्रिक्स में आप एक रो जोड़ दीजिए नीचे, आपको नीचे एक रो जोड़नी है, और उस रो की वैल्यू होगी 100 200 300 400, ऐसे करके 4 एलिमेंट आपको इसके अंदर मान लीजिए ऐड करने हैं, आपको एक रो जोड़नी है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? एनीवन कुछ आइडिया दे सकता है आप में से कोई? क्वेश्चन समझिए, इस मैट्रिक्स में 4 रो है ना। मैट्रिक्स के अंदर एक 5वीं रो इंसर्ट करनी है, और उस 5वीं रो की वैल्यू, है ना, मैं रो बना देता हूं, है ना, रो का नाम दे देता हूं लेट 5th रो, है ना, 5th रो। सो दिस इज FIFTH, 5th रो, इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और इस वेरिएबल का मैं एक बना देता हूं 100 विद इंक्रीमेंट ऑफ 100, एंड लास्ट वैल्यू इज 400। तो 100 200 300 400, ये 4 वैल्यूज अब इसके अंदर मुझे क्या करनी है? इंसर्ट करनी है। तो ये मेरी 5th रो है, लेकिन इसको मुझे इस मैट्रिक्स के अंदर इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या करने वाला हूं? x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, तो x का मतलब क्या है? 4x4, और फिर सेमीकोलन, और उसके बाद 5वीं रो क्या है?
उसका नाम क्या है? फिफ्थ रो। तो आई विल राइट फिफ्थ रो। फिफ्थ रो इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन। मैंने क्या किया, पहला मैट्रिक्स x है, दूसरा मैट्रिक्स फिफ्थ रो है, दो मैट्रिक्स है, और इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने क्या किया है, आपस में जोड़ दिया है। तो जोड़ने के बाद में यदि मैं प्रेस एंटर करूंगा तो देखिए क्या आंसर आता है ना? यू आर गेटिंग दैट फिफ्थ रो हैज बीन इंसर्टेड इन द मैट्रिक्स। तो देखिए पहले आपका साइज 4x4 था, अब आपका साइज क्या हो गया? 5x4 हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ओके। अब देखिए अभी मैंने आपको रो जोड़ के दिखाई है, क्या आप इसमें कॉलम जोड़ सकते हैं? है ना, कॉलम जोड़ना है। अब आपको देखो x का साइज क्या है? 5x4, 5x4 है। अब इसको 5x5 बनाना है, यहाँ पे एक कॉलम जोड़ना है, और उस कॉलम की वैल्यू हम अपनी तरफ से रख लेते हैं, माइनस में रख लेते हैं। लेट इट इज -400, -300, -200 और दिस या -4000, इस तरह से। तो चलिए इस कॉलम को मैं नाम देता हूं फिफ्थ कॉलम। तो आई एम मेकिंग ए वेरिएबल फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम इक्वल टू, और उसकी वैल्यूज ले लेते हैं। लेट पहली वैल्यू -900 है ना, the first value is -900, then there is a semicolon, then I am giving -700, then again semicolon, then I am giving -500, again semicolon, and any other value, let the value is 4000। कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, 4 वैल्यू मैंने ले ली है ना। प्रेस एंटर। जब मैं प्रेस एंटर करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिल रहा है? मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ही नहीं लगाया है ना, मैंने इसमें क्या नहीं किया, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाया। तो आई विल पुट ए स्क्वायर ब्रैकेट ओवर हियर। देख लीजिएगा एक एक चीज का कितना इंपॉर्टेंस है। तो आई एम यूजिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट हियर एंड देन आई प्रेस एंटर, सो आई एम गेटिंग ए कॉलम ओवर हियर, है ना। अभी वो सिंगल एलिमेंट ले रहा था, है ना, लास्ट वैल्यू -4000। सो अब इस केस में देखो एग्जीक्यूशन हो गया, कोई एरर नहीं आई थी। इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब इस कमांड का कैसे एग्जीक्यूशन हुआ। -900 सेमीकोलन, तो सेमीकोलन क्या करता है? सप्रेस कर देता है ना, आउटपुट को दिखाता नहीं है। तो इसने -900 का आउटपुट दिखाया नहीं, -900 का आउटपुट दिखाया नहीं, -700 का आउटपुट दिखाया नहीं, -500 का आउटपुट दिखाया नहीं, इसने केवल -4000 दिखाया था। लेकिन जब मैंने इसे मैट्रिक्स में बंद कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, तो फिर इसने मुझे कॉलम शो किया है ना। तो ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। अब इस कॉलम को मुझे ऐड करना है इसके अंदर, यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके लिए क्या कमांड होगी? आई विल गिव x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, मैट्रिक्स का नाम क्या है? x, और इसकी साइज क्या है? 5x4, और इसके साथ मुझे किसको जोड़ना है? फिफ्थ कॉलम को। फिफ्थ कॉलम। आई विल राइट फिफ्थ कॉलम, मैट्रिक्स का नाम फिफ्थ कॉलम। तो जब मैं इसे प्रेस एंटर करूंगा तो मुझे मैट्रिक्स का साइज मिलना चाहिए। सो आई एम प्रेसिंग एंटर। तो अभी क्या कह रहा है? सेमीकोलन सर, सेमीकोलन बोल रहे थे। सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, है सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। हाँ जी सर, एक और एरर है ऊपर, एक और एलिमेंट बढ़ाना पड़ेगा ना सर? हाँ, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 4 एलिमेंट है ना। तो चलिए हम फिफ्थ कॉलम को एक एलिमेंट और बढ़ा देते हैं। हमने सेमीकोलन लगाया और अगला एलिमेंट हमने ले लिया 8000, ठीक है। तो अब इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हो गए, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट थे। तो जैसे ही हमने प्रेस एंटर किया, अब इसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, और हमने उसी कॉलम को, उसी कमांड्स को दोबारा से एग्जीक्यूट किया। x इक्वल टू x फिफ्थ कॉलम, और जैसे ही हमने प्रेस एंटर किया, सो वी आर गेटिंग 5x5 मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस कमांड के थ्रू आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है कि 2 तरह के कॉन्केटिनेशन होते हैं। एक तो होता है वर्टिकल कॉन्केटिनेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल कॉन्केटिनेशन। तो पहले जो हमने किया, ये 4x4 का मैट्रिक्स था, और इसको हमने 5x4 के मैट्रिक्स में बदल दिया था।
तो ये हमने कौन सा कॉन्केटेनेशन किया था? वर्टिकल कॉन्केटेनेशन किया। इट इज ए वर्टिकल कॉन्केटेनेशन। और जब हमने कॉलम को ऐड किया तो ये हॉरिजॉन्टल कॉन्केटेनेशन था। तो जब हम वर्टिकल कॉन्केटेनेशन करते हैं तो हमें दोनों मैट्रिक्स के बीच में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? सेमीकोलन, तभी तो नेक्स्ट रो में आएगा। सेमीकोलन का मतलब नेक्स्ट रो। और अभी जो हमने कॉन्केटेनेशन किया है वहां पर हमने कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाया है, क्योंकि वहां पर हमने हॉरिजॉन्टली कॉन्केटेनेट किया है। ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों को हॉरिजॉन्टली कॉन्केटेनेट किया है। ठीक है, तो अब जरा मैं समराइज कर दूं, मैंने अभी तक क्या क्या कराया है। आपको प्लॉटिंग ऑफ द इलिप्स कराया है, प्लॉटिंग ऑफ द हाइपरबोला का मैंने आइडिया दे दिया है, वो एज ए असाइनमेंट है आपके लिए। उसके बाद मैंने पाई एक कांस्टेंट है ये बताया है। पाई कांस्टेंट के बाद मैंने आपको डॉट ऑपरेटर के बारे में बताया है ना। डॉट ऑपरेटर का मतलब है एलिमेंट बाई एलिमेंट ऑपरेशन, है ना। एलिमेंट बाई एलिमेंट ऑपरेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल दिया है कि आप स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, रूट कर लें, वो आपकी चॉइस है। आप जो भी फंक्शन लगा देंगे वही काम हर एलिमेंट पर हो जाएगा। इसके बाद हमने समझा है कि रो कैसे इंसर्ट करते हैं और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉन्केटेनेशन कैसे होता है और वर्टिकल कॉन्केटेनेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने जीरोज एक फंक्शन पढ़ा है और इसके अलावा हमने वंस एक फंक्शन पढ़ा है। ठीक है, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, नोट जरूर करना है आपको। और अब मैं इसे सीएलसी कर देता हूँ। अब सीएलसी करने के बाद, हाँ बोलिए, कोई भी क्वेरी प्लीज। सर ये सर उसमें सर 4000 क्यों आया था आउटपुट, एक बार बता दीजिए सर। 4000 जो कॉलम में हमने बढ़ाया था बाद में, इसमें हमने सेमी कॉलम्स नहीं लगाए थे, वो सॉरी ब्रैकेट नहीं लगाए थे, स्क्वायर ब्रैकेट दोनों तरफ, और सर उसमें 4000 आ रहा था आउटपुट। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें 4000 आ रहा था आउटपुट, है ना। ठीक है ओके। तो चलिए मैं उसी कमांड को जरा ले आता हूँ, है ना। तो उसी कमांड को लाने के लिए देखो मैं टाइप नहीं करूंगा, पुरानी सारी कमांड्स आती चली जा रही है ना। तो इसके लिए मैं कौन सी की यूज करता हूँ? एरो की यूज करता हूँ। ये भी नोट कर लीजिए, जो आपके कीबोर्ड में एरो की होती है, अपर एरो की, है ना, अपर एरो की और लोअर एरो की होती हैं। 4 एरो की होती है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना, अपर एंड लोअर। तो अपर लोअर वाली की हेल्प से आपको पुरानी कमांड्स स्क्रीन पे आती हैं। तो मेरे ख्याल से ये वाली कमांड थी, मैंने ये नहीं थी, इसमें तो मैट्रिक्स लगाया था, ये कमांड थी। आप इसी कमांड की बात कर रहे हैं जिसमें आंसर केवल -4000 आया था? यस सर। इसकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल, है ना। देखिए मैंने इस कमांड को दोबारा टाइप नहीं किया है, मैंने इस कमांड को अपनी हिस्ट्री में से उठा लिया है। ये देखो, ये लास्ट में आ रही है ना कमांड हिस्ट्री। तो ये कमांड हिस्ट्री जो है मैं उठा सकता हूँ यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एरो की, कीबोर्ड में जो एरो की होती है, तो मैंने वहां से उठा लिया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें आउटपुट -4000 ही क्यों आया था, है ना। इसलिए आया था, देखिए पहला वेरिएबल कितना है? -900, है ना, -900 वैल्यू है पहली। तो मान लीजिए मैं किसी वेरिएबल सी में c इक्वल टू -900 लिखूं, -900, ठीक है। और मान लीजिए मैं एंटर प्रेस करूं तो c की, तो आंसर क्या आएगा? c इक्वल टू -900। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए स्क्रीन पर आ रहा है ना। अब इसी कमांड में यदि मैं पीछे सेमीकोलन लगा दूं तो एंटर प्रेस करूं तो क्या स्क्रीन पे कुछ आएगा? बताओ, स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सेमीकोलन लगा दिया गया है। सेमीकोलन क्या करता है? सप्रेस करता है, आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाता नहीं है, लेकिन मेमोरी में कैलकुलेट करता है ना। देखो मेमोरी में जरूर कैलकुलेट हो रहा है सी, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि सेमीकोलन एक सप्रेस ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? -900 सेमीकोलन, तो ये आउटपुट स्क्रीन पे दिखाया नहीं गया, ये सप्रेस हो गया। ठीक है, उसके बाद -700, ये भी सप्रेस हो गया। -500, ये भी सप्रेस हो गया। फिर -4000 के पीछे तो सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये सप्रेस नहीं हुआ और ये आउटपुट स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा आपको। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये सॉफ्टवेयर आप शेयर कर दीजिएगा। क्या शेयर कर दूं? सर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर, हाँ, तो सॉफ्टवेयर का वर्जन, हाँ अब तो मुझे वहां से, ठीक है, आज कर दूंगा मैं इसको, है ना। लैपटॉप पे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा तो, है ना। आई विल डू इट टुडे। तो और कोई क्वेरी आपकी?
ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है, थोड़ा सा अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पहला एक्सपेरिमेंट होगा। अब हमको थोड़ी थोड़ी बेसिक्स आ गई हैं, और बाकी जो भी बेसिक्स है फिर वो थोड़ा धीरे धीरे साथ में बताते रहेंगे आपको, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है, देखो मैटलैब की एक खूबी और है, बहुत जबरदस्त खूबी है मैटलैब की, कि मैटलैब के अंदर हम लोग सिंबॉलिक वर्क कर सकते हैं, है ना, सिंबॉलिक वर्क कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा कुछ होता है ना। तो क्या देखिए, मैं a प्लस बी होल स्क्वायर अभी लिखूंगा, a प्लस बी, है ना, पावर 2, कुछ ऐसे लिखता हूं मान लीजिए मैं, तो क्या ये कमांड काम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि b डिफाइंड नहीं है ना। a चलो डिफाइंड है, उसी तरीके से a तो डिफाइंड है, b डिफाइंड नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं मैटलैब में, वो पूरा एक अलग से सिंबॉलिक टूल बॉक्स है मैटलैब के अंदर, एक क्या है, सिंबॉलिक टूल बॉक्स है। तो उसके अंदर हम सिंबल बना सकते हैं, है ना। वी कैन वर्क ऑन, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चंस, हम लोग अननोन होता है तो क्या कहते हैं, लेट द अननोन इज एक्स, है ना। हमें जो भी वैल्यू क्वेश्चन में निकालनी होती है, लेट द कैपेसिटी ऑफ द मॉडल्स आर एक्स वाई जेड, तो अननोन मान लेते हैं एक्स वाई जेड। तो इसी तरह से मैटलैब में हम लोग अननोन मान करके भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और उसको फिर अननोन के फॉर्म में सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली फैसिलिटी बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है ना, तो सी प्लस प्लस इन लैंग्वेजेस में ये फैसिलिटी सिंबॉलिक वाली नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंबॉलिक पर डिटेल में काम करेंगे, है ना। अभी मैं हल्का सा एक आइडिया दे देता हूँ सिंबॉलिक का। तो सिंबॉलिक के केस में हम क्या करते हैं, SYMS, है ना, सिम्स, और हम लिख देते हैं XYZ। तो इसका मतलब है XYZ हमारे अननोन वेरिएबल है, क्या है, हमारे अननोन वेरिएबल है, ठीक है। सिम्स XYZ। तो देखिए यार वर्क स्पेस में देखिए, X, Y और Z ये एक सिंबॉलिक वेरिएबल बन गए हैं। ये भी वेरिएबल हैं, ये न्यूमेरिक वेरिएबल हैं पहले वाले, और अब ये जो वेरिएबल है कैसे वेरिएबल है, सिंबॉलिक वेरिएबल है। अब सिंबॉलिक वेरिएबल से ये फायदा है मुझे कि मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए कोई इक्वेशन है मेरी, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मान लीजिए, तो मैंने लिखा x प्लस वाई पावर 2, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब मान लीजिए मैं इसे प्रेस एंटर करता हूं, तो देखिए z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई पावर 2 लिखा हुआ मेरे पास आ गया, ठीक है। तो ये चीज बड़ी हेल्प करती है हमको जब किसी चीजों के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फॉर्मूले, ये सब चीजें बनानी होती हैं, तो सिंबॉलिक टूल बॉक्स बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो z इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, या मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट मैं बनाता हूं w इक्वल टू, है ना, w इक्वल टू, और मैंने लिखा x पावर 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड x पावर 4 प्लस, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 78 मल्टीप्लाई x पावर 2 माइनस 89। एक इक्वेशन बन गई, w इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x4 प्लस 78x स्क्वायर माइनस 89, मान लीजिए इस तरह से कोई इक्वेशन है। तो देखिए आप, मैंने प्रेस एंटर किया तो w क्या हो गया, एक वेरिएबल बन गया। कैसा वेरिएबल बना, वही सिंबॉलिक वेरिएबल बन गया अपने आप। जब किसी वेरिएबल के अंदर आप सिंबॉलिक वैल्यूज दे रहे हैं तो वो वेरिएबल भी सिंबॉलिक ही होगा। अब इस सिंबॉलिक वेरिएबल को मान लीजिए आप करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यू वांट टू डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक कमांड देनी होगी, डिफ, DIFF फॉर डिफरेंशिएशन, और आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, यू वांट टू डिफरेंशिएट w को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो क्या आंसर आना चाहिए, x7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 7x 7x to the power 6. हाँ, x to the power n का nx n-1 होता है ना,
nx n माइनस 1 होता है 1 ना, इस तरह से होता है। तो देखिए अभी आपका आंसर नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन। मैंने डिफ की स्पेलिंग गलत लिख दी है, डी डबल DI आई, डबल एफ होगा सर। मुझे लिखना पड़ेगा डिफ, डी आई डबल एफ, और मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, आई वांट टू डिफरेंशिएट डब्ल्यू, प्रेस एंटर। तो देखिए आंसर आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर सही आ रहा है। देखो x टू द पावर 7 का हो गया 7x6, 12 और x टू द पावर 4 का Yes, क्या हो sir. गया, 4 3 जा 12, 12x2 बिल्कुल सही है, और 2x हो गया इसका, तो 78 दूनी 156 होते हैं, तो 156x हो गया, और -89 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0, 0 कांस्टेंट कांस्टेंट। का 0 होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको हल्का सा एक आइडिया दे दिया है सिंबॉलिक वेरिएबल्स का भी, है ना, कि सिंबॉलिक वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं और कैसे हम कोई इक्वेशन लिख सकते हैं अननोन्स के फॉर्म में, और हम फिर उसको अगेन अपनी न्यूमेरिकल एबिलिटीज में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। यदि हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो हम INT ब्रैकेट में W, तो W का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय, x to the power 8 divided by 8 वेरी गुड। तो चलो चेक करते हैं, देखिए आपका क्या आंसर आ रहा है, x टू द पावर 8 डिवाइड बाय 8, ये बिल्कुल ठीक है ना। और फिर 3x4, x4 का क्या होगा, x to the power 5 upon 5 अपॉन 5, तो ये सही आ रहा है, 3x5 अपॉन 5, 78x cube upon 3 हाँ 3 से उसको काट करके 26 हो गया, yes, है ना, तो ये 26x क्यूब हो गया, है ना, 3 से 89x हाँ, और 89 का 89x हो गया, तो इट इज गिविंग करेक्ट वैल्यूज। तो आज की क्लास में हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सीख लिया है। सर हाँ बोलिए। सर इससे पहले हमने स्क्वायर करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज किया था, यस, तो यहाँ पे नहीं कर सकते उसको, कहाँ पर, जो यहाँ पे x प्लस वाई डॉट का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं कर सकते इसको? नहीं, देखो ये सिंबॉलिक वेरिएबल है ना, और यदि आप यहाँ x पावर 6 कर रहे हैं, यहाँ x डॉट पावर 6 करेंगे, इसका डॉट का मतलब होता है एलिमेंट बाय एलिमेंट, तो x के अंदर एलिमेंट होने चाहिए। अभी आपके x के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, x एक अलग से वेरिएबल है आपका। यदि x के अंदर कोई 4-5 एलिमेंट होंगे, तब आप डॉट लगा करके उन एलिमेंट्स का स्क्वायर करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो x एक सिंगल एलिमेंट है, x के अंदर जब 4-5 एलिमेंट होंगे, जैसे 1 to 5 या, तो उनका स्क्वायर हो सकता है, उनका क्यूब हो सकता है ना। ऐसा हो सकता था कि x के अंदर 4 वेरिएबल होते ABCD, मान लीजिए x के अंदर 4 वेरिएबल होते ABCD, और फिर आप डॉट x पावर 2 करते, तो उसके हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाता a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, d स्क्वायर, ये तो पॉसिबल है। लेकिन जब उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर डॉट लगाने का क्या फायदा है, देयर इज ऑफ नो सेंस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए, है ना, टाइम भी फिनिश होने को है, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ मैटलैब को। हाँ जी, 45 पार्टिसिपेंट्स आर विद मी। यस, एनी क्वेश्चन प्लीज। चलिए, कोई ये बता सकता है कि आज हमने क्या किया है, कोई भी आप में से, कि आज हमने क्या क्या सीखा है, व्हाट वी हैव लर्न टुडे। बताइए कोई भी। कौन बताएंगे, कोई बता दीजिए। ऋषभ बता दीजिए, ऋषभ B29। ऋषभ, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। हाँ चलिए, आप बताइए हमने क्या क्या सीखा। सर हम लोगों ने सर पहले सर्कल, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला, सर प्रोग्राम्स बनाए। वेरी गुड। यस सर। और उसके बाद जीरोस, Yes, sir. ऑपरेटर, पाई, 0 dot operator Dot ऑफिशियल ऑपरेटर्स पढ़े सर। सिंबॉलिक वेरिएबल, डिफरेंशिएशन, integration सर ये सब नोट कर लीजिएगा कॉपी में। yes 3 sir क्लास हो चुकी हैं, तीनों क्लास की समरी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा, है ना, Okay, sir. डिजाइन, हाँ वो स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, Okay. चलिए तो मैं वो एंड करता हूँ क्लास को। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स Thank you, फॉर sir. लिसनिंग, थैंक्स फॉर Thank you. लिसनिंग, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक्स।